Hey there, welcome back. So this is your Ramandeep Singh, and today we're going to be learning about technique, basically, है ना? So far we are solving problems on binary trees. Today we'll be building the base for a technique which you're gonna learn, which is rerouting technique, and it's very important. A lot of problems you can solve, tree problems and graph problems, we can solve using this technique. पहले तो नहीं आएगा, लाइक ए बी सी में तो मोस्ट प्रोबेबली ये टेक्निक नहीं आती होती है यूजुअली. लाइक व्हेन वी एंटर हार्डर लेवल प्रॉब्लम्स, ट्री ग्राफ डीपी, देन वी हैव दिस टेक्निक विच इज़ रीरूटिंग टेक्निक, है ना. विल अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़, बट for this video we'll be solving this problem, which is simple problem, simpler version, and then in the next video we'll be explaining you why do you need this rerouting thing in the first place. So let's read the problem statement. Given a tree rooted at node 0 where each node has positive weights assigned, calculate the maximum weight of a path starting from the root node. ठीक है. So what we have been given is, we have been given this tree structure. We can see 10 5. तो बोर्ड पे चलते हैं. Where is the board? हाँ, रीरूटिंग टेक्निक. तो ये वाला एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सी 10 5 23 7 30, है ना. तो 10 and then we have 5 20 3 7 30 and then we have 30 as the right side. अच्छा, so let's see what it is. Basically इसमें करना क्या अपने को. So let's first understand that the problem statement says we have been given a tree rooted at node number 0. तो मतलब मैंने नोड का नॉमिनेशन नहीं किया यहाँ पे. आई हैव जस्ट, ठीक है, दिस इज नोड नंबर 1 एंड दिस इज द वेट ऑफ दैट नोड. सो एवरी नोड कैरी सम वेट, ठीक है, एंड दिस इज क्लियर दैट द वेट इज पॉजिटिव. देयर आर नो नेगेटिव वैल्यूज आर नॉट देयर. सो दिस इज नोड नंबर 1. सो लेट्स कर देते हैं नॉमिनेशन 1. दिस इज नोड नंबर 2. This is node number 3. Let's say this is node number 4, node number 5, node number 6, like this. So this is a binary tree we have been given, rooted at this node, which is node number 1 या node number 0. For here we have been given node number 0. ठीक है, ठीक है. Each node has positive weights. Calculate the maximum weight of a path starting from the root node. So this is the root node. So this is a binary tree rooted at node number 1. It should be clear to every one of you. And these are the weights of each node. Every node carries some weight. Then let's move to the third thing, which is कि हमें करना क्या है इसमें. We are supposed to find the maximum sum which we can find for any path. तो कोई भी path है, whatever, जो भी इसमें है. लेट्स से फॉर इंस्टेंस ये भी एक पाथ है, दिस वन कंस्टिट्यूट्स अ पाथ. 10 + 5 + 3, 5 + 3 इज 8, 8 + 10 इज 18, 10 + 5 + 7, 15 + 7 इज 40, अपना 15 + 7 इज 22, 10 + 20 + 30, 30 + 30 60. सो वी हैव ट्रेस्ड टू पाथ्स, ना 3 पाथ्स. 10 5 7, दिस इज अनदर पाथ. 10 15 + 7 is 42, 15 + 7 is 22, not 42. Then this one, this third path, 10 + 20 30 + 30 60. तो ये मतलब 3 पाथ्स हैं. एवरी पाथ हैज सम पाथ सम, ठीक है. एंड वी आर सपोज टू फाइंड दैट मैक्सिमम सम, एंड फॉर दिस केस द मैक्सिमम सम इज 60. इट्स 60, ठीक है. तो हाउ विल वी फाइंड इट, कैसे करेंगे इसको. लेट्स सी, क्लीन डायग्राम बनाते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सिंपल है, इसमें तो रीरूटिंग टेक्निक नहीं यूज़ कर रहे हैं हम. ये तो मतलब नॉर्मल एक ट्रेवर्सल ही है, DFS ट्रेवर्सल. 3 7 and then we have this 30. ठीक है.
so let's start with this. Now we have tree rooted at this node. This is node number 0, and what we have been given is we need to find the sum, max sum, सॉरी मैक्स सम हमें ढूंढना है. कैसे ढूंढेंगे देखते हैं. अगेन सेम थिंग, वही पैटर्न है. पैटर्न यही है कि जिस भी नोड पे खड़े हो, ऑन वट एवर नोड यू आर स्टैंडिंग, यू कैन कॉल अ हेल्पर फंक्शन टू द लेफ्ट सब ट्री एंड टू द राइट सब ट्री. ठीक है, तो लेट्स क्रिएट अ हेल्पर फंक्शन, टेक्स इन सम नोड, रिटर्न्स, इट शुड रिटर्न समथिंग, रिटर्न्स जो भी आंसर हमें डिमांडेड है क्वेश्चन में. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम वेट, रिटर्न्स द मैक्सिमम वेट ऑफ मैक्सिमम वेट ऑफ अ पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट नोड. ठीक है, ऑफ द पाथ स्टार्टिंग एट दिस नोड, जो हमारा ये नोड है, ये जो नोड इसमें पास्ट है, तो इस नोड से जो स्टार्ट कर रहा है उस नोड से मैक्सिमम पाथ सम रिटर्न करना है. और ये नोड कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ रूट नोड, इट कैन बी अ लीफ नोड, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट दिस फंक्शन रिटर्न्स. तो इसमें वही है, पैटर्न यही है कि मुझे यहाँ इसके लिए, इसके लेफ्ट चाइल्ड के लिए, इस वाले सब ट्री के लिए मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा हेल्पर फॉर दिस नोड, एंड आई विल ऑल्सो कॉल द सेम फंक्शन फॉर दिस नोड. Then this in turn is going to call itself for this. Then this will again call itself for this 3 helper 7. तो देखो अब हेल्पर 3 फिर कॉल करेगा इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड के लिए, है ना, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बाइनरी ट्री है. इट ऑल्सो नीड्स द मैक्सिमम सम. तो मैं पहले लेफ्ट चाइल्ड का निकालूंगा, राइट चाइल्ड का निकालूंगा, ये प्रोसीजर है. अब देखो इसका लेफ्ट राइट नल है तो इसको 0 आएगा, 0 + 3 3. तो मतलब ये है कि द मैक्सिमम सम फॉर द सब ट्री या फॉर द ट्री रूटेड एट दिस नोड इज 3. मिल गया मुझे, इस ट्री के लिए आंसर मिल गया. एंड दिस हेल्पर फंक्शन इज गोना रिटर्न 3 टू द कॉलिंग फंक्शन. मतलब यहाँ से कॉल हुआ था ना 5 इस नोड से, तो इसको 3 मिल जाएगा फ्रॉम इट्स लेफ्ट चाइल्ड. यहाँ से इसको 7 मिल जाएगा विद द सेम रीजनिंग. क्यों मिल रहा है? विद द सेम रीजनिंग. तो 3 और 7 में हमें तो मैक्सिमाइज करना है पाथ सम, तो हम 7 को ले लेंगे. मतलब हमने इस 7 में ये ऐड किया, मतलब हम इस तरह से पाथ बना रहे हैं. सो इट्स गोना गिव मी 5 + 7 which is 12 मिल रहा है मेरे को. देन मतलब इस पूरे सब ट्री के लिए which is rooted at this node 5, the maximum sum is 12. cool है. Then from here we will return this 12 to the calling node which is 10. 12 रिटर्न करेंगे. ठीक है. सिमिलरली फॉर द राइट सब ट्री हमारे पास यहाँ 30 है, यहाँ से 30 रिटर्न किया, 30 + 20 50, फिर यहाँ से 50 रिटर्न किया, 50 रिटर्न होगा. यहाँ तो और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, हमारे पास 30 है, फिर 20 है, 50 रिटर्न किया. तो यहाँ से मेरे पास 12 आया, यहाँ से मेरे पास 50 आया, इनमें से मैक्स लिया विच इज़ 50, जिसमें मैंने ऐड कर दिया रूट नोड विच इज़ 10. 50 सेलेक्ट करूँगा, मतलब ये सारा जो मेरे कैलकुलेशंस थी रिजेक्ट कर रहा हूँ. एंड आई एम सेइंग ठीक है यहाँ से मेरे को मैक्सिमम मिल रहा है तो मैं इस वाले पाथ पे जाऊँगा. मतलब अब यहाँ इतना पाथ तो बन ही चुका था, 20 + 30 50, इसमें मैंने ऐड कर दिया ये वाला नोड. सो इट्स गोना गिव मी 60 है ना, 50 तो यही हो गया था, सॉरी 50, एंड आई एम गोना ऐड दिस रूट नोड, सो दिस विल गिव मी 60. सो 60 इज़ द आंसर. तो कहने का मतलब ये है द आंसर और द मैक्सिमम सम पाथ, द मैक्सिमम सम फॉर एनी पाथ for the tree rooted at this node 10 is 60. This is your answer. cool है, समझ आया है ना.
ठीक है. So that was a simple example. So and you got the idea of how we're going to solve this problem. So let's write the definition for this function. Helper, उसके अंदर अपने पास नोड हो जाएगा, एंड देन अगर तो नोड क्या है, नोड इज नन, देन वी गोना रिटर्न 0, नहीं तो क्या रिटर्न करेंगे, वी विल रिटर्न मैक्स, मतलब लेफ़्ट से और लेफ़्ट और राइट से जो मैक्सिमम आ रहा है वो प्लस करंट वैल्यू. तो करंट वैल्यू हो जाएगी नोड डॉट वैल्यू प्लस नोड डॉट लेफ्ट, और फिर इधर आ जाएगा नोड डॉट लेफ्ट, नोड डॉट राइट प्लस नोड डॉट वैल्यू, और ये मेरे पास आ जाएगा मेरा आंसर होपफुली, है ना. हाँ यही है, रिकर्शन से यही हो जाएगा. दैट्स द आंसर. ठीक है, तो लिखते हैं इसका कोड लिखते हैं इसका. So let's create a function def maximum path and क्लास बनाते हैं, उसमें लिखते हैं ये, तो रहने देते हैं, सीधा कर लेते हैं. ठीक है, रूट and then we will have this is none, return 0, return root dot plus max of maximum path root dot left cool है. तो यही है, एंड होपफुली यू गॉट व्हाट वी, होपफुली आपको चीज़ समझ आ गई होगी. एंड हाँ, इसको वो करते हैं ट्री नोड, इसको रन करके देखते हैं. ठीक है, क्लास बनाते हैं ट्री नोड के लिए, एंड ठीक है, इनिट मेथड बनाया और वी हैव वैल्यू, फिर लेफ़्ट नोड होगा एक, फिर राइट नोड होगा, और जो भी हमारा वैल्यू है वो तो हम सेट करेंगे. इट्स गोना बी वैल्यू नॉट सेल्फ डॉट लेफ्ट इज इक्वल्स टू लेफ्ट, जो भी उसमें हो रहा है सेल्फ डॉट राइट. कूल है. तो ये मेरी ट्री नोड क्लास है, ये इसका कंस्ट्रक्टर है. एंड देन वी हैव दिस मैक्स पाथ फंक्शन, फिर अपने बनाते हैं लेट्स से रूट नोड बनाते हैं, ट्री नोड हो जाएगा, और इसमें हम पास कर देंगे वैल्यू. लेट्स से इसी यही एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक दिस एग्जांपल 10, फिर उसका लेफ़्ट है हमारे पास 10, लेफ़्ट है कितना है, लेफ़्ट नोड गया है इसका 520, 520 520, तो ट्री नोड 5 और 5 का लेफ़्ट 3 है, और अच्छा 3 है, और 5
का राइट है वो क्या है, 5 का लेफ्ट 3 है, राइट है 7। 10, फिर उसका लेफ्ट आ गया 5, फिर ये 5 वाला कंप्लीट हो गया ना। हाँ, फिर आते हैं उस पर, इसके राइट पे, विच इज़ व्हाट वी हैव 20 है ना। 20 का लेफ़्ट तो कुछ नहीं है ना, नल लेफ़्ट तो ठीक है, तो वी कैन पास नन, और फिर अपने पास कर देंगे इस साइड पास कर देंगे। अच्छा नन क्यों पास करें, ट्री नोड पास करें। 20 का लेफ्ट नन है ना, तो नन और यहाँ पे पास करेंगे, फिर पास 7 है उसका, 30 है ना, 20 का 30। So let's call this maximum path for this node and print the answer. Hopefully everything is correct here. 10 left node 5 5 का लेफ्ट 3, ठीक है, 5 का राइट 7, कूल है, आगे इसमें कुछ नहीं है, कूल है। एंड देन वी हैव 10 का राइट 20 का लेफ्ट कुछ नहीं है, एंड 20 का राइट ये है। कहाँ गड़बड़ होगी, और क्या गड़बड़ हो रही है इसमें। ट्री नोड स्ट्रक्चर सही है ना, सेल्फ वैल्यू लेफ्ट राइट ठीक तो है। That's the reason. सही है। तो यहाँ तो गड़बड़ नहीं कर रहा मैं, एक मिनट ये बना के देखता हूँ, अभी देखते हैं। PRTN इज नॉट डिफाइंड, कहाँ किया ये मैंने, ओ प्रिंट, सॉरी फॉर दैट। 10 आ तो रहा है, अच्छा इसको तो हटा दें, 10 आ रहा है, कूल है। यहाँ कुछ गड़बड़ की है।
ठीक है, कूल है, सॉरी वो मैं नन टाइप का नोड बना रहा था। ओके कूल है, वो बग था, ठीक है। आई होप, तो इसका मतलब यही ट्री दिया है मैंने, यही इनपुट दिया है इसमें, एंड यू कैन सी कि 60 आंसर आ रहा है। 60 मीन्स 10 plus 20 plus 30, that is 60, and that's your answer. And I hope, so what we did here, just keep it in mind कि हमने किया गया यहाँ पे, what we have done here is we have been given a binary tree and we just calculated the maximum weight of a path for this tree rooted at this node number 0, and the path should also start from that particular node. तो पाथ 0 से ही शुरू होना चाहिए, ये इसमें शर्त है, देखो ना, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 0। हालांकि ये भी तो पाथ है ना, 3 to 7, 3 5 7, ये भी एक अपने आप में पाथ है, बट वो नहीं चाहिए अपने को, हमें 0 नोड पे रूटेड या स्टार्ट होने वाला पाथ चाहिए। कूल है। So that's all for this one, and I hope to see you all in the next video. Till then, take care, bye bye.